नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बसु कल्याण के उजलम ग्राम में गांजे के लगभग 800 पौधों को पुलिस ने किया जब्त। हुमनाबाद नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने किया। कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में बारिश से 3 लोगों की मौत, 150 घर क्षतिग्रस्त। लोकतंत्र बचाने के लिए राज्यपाल का पद समाप्त करे रवि वर्मा, कुमार ने कहा। आज फिर अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया, आपूर्ति से मनीष सिसोदिया ने कही ये बात। केरल के 6 जिले हो जाए सतर्क, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बसु कल्याण के उजलम्बा ग्राम में गांजे के लगभग 800 पौधों को पुलिस ने जब्त किया है। बसु कल्याण तालुके के उलम्ब में एक खेत में गैरकानूनी रूप से उगाया जा रहे गांजे की सूचना पर धावा डालकर 800 पौधे जिसकी 400 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, इसको पुलिस ने सफलतापूर्वक जब्त किया है। यह जानकारी आज बीदर पुलिस मुख्यालय में एसपी प्रदीप गुंटी ने पत्रकारों को दी है। इस संबंध में एसपी प्रदीप गुंटी ने विस्तार से बताया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ। ಸೊ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ 425 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೊಲ ಮಾಲೀಕ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಹೊಲ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 400 kgಗಳು ಆ ಗಿಡ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹೂವು ಎಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಗಳು ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ। ಸೊ NDPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 20A1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ PSI ಮಂಟಾಳ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 10,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಹಣದ ಆಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಲೆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೀತಾರೆ। ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಂಥ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ। ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, 10 ವರ್ಷ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ। ನನ್ನ ಬೀದರ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ। ನಶಾಮುಕ್ತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು, ಒಂದು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ। ಅದು ಅವರದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾಗಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಾಗಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಇಂಥ ಸಾಗುವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।
हुमनाबाद नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने कहा कि शहर के लोगों को पानी, रोशनी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, इसीलिए सभी सदस्यों को पार्टी की भावनाओं को भूलकर विकास में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व सदस्य वीरण्णा एच पाटिल, पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण राव बुल्डा, सुक्षी पार्वती, मदिवालप्पा शेरीकर, उपाध्यक्ष मुकरम झा और सभी सदस्य उपस्थित रहे। हो गया चुनाव में क्या हो गया आपको मालूम है, कुछ ही मतों से हम हारना पड़ा। कोई बात नहीं, ये तो हार जीत जो लेकर जाता है उसको कहते हैं बाजीगर। अगर नहीं तो कुछ नहीं होता, ये तो हार जीत लगे सो है, उसको कोई डर कर बैठने वाले नहीं। लेकिन किस लिए हार हो गया वो भी हम सोचते रहना। ये कोई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वाले हराने के लिए किसके पास ताकत नहीं है, ना जनता दल के पास ताकत नहीं। जो हमारे में कांग्रेस में लड़कर हमने गिरे। क्या खाली साहब बरोबर है? यहाँ पर कोई सामने वाले गिरे नहीं, ये तो एक्सीडेंटल है, ये कोई गिरा नहीं सकता पर कांग्रेस को। लेकिन हमारे लोगों से थोड़ा कुछ हो गया, लेकिन वो जाने दो, उसके बारे में पीछे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। शनिवार रात को उत्तरी कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम एजेंसियों ने जैसा अनुमान लगाया था, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधि के कारण उत्तरी कर्नाटक के कई जिले भारी बारिश की चपेट में आ गए। विजयनगर जिले में शनिवार को बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 55 वर्षीय पीड़ित नरप्पा बनकर और 45 वर्षीय प्रशांत बनकर दोनों विजयनगर जिले के हगरी बोम्मनहल्ली तालुके के दासनपुर गांव के रहने वाले थे। दावणगेरे जिले में 81 वर्षीय कुलगट्टे बसवराजप्पा की शनिवार देर रात घर की दीवार गिरने से मौत हो गई। इस घटना में उनके बेटे और बहू भी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे खतरे से बाहर हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया है कि अभिभाजित बल्लारी जिले और उसके आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में 130 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे भयंकर बाढ़ आ गई। रायचूर, कोप्पल, यादगीर और कलबुर्गी जिलों में भी भारी बारिश की खबर है। स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्यों के राज्यपाल लोकतंत्र और देश की संघीय व्यवस्था के लिए खतरा है और उन्होंने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग की। सीनेट भवन में दशहरा राष्ट्रीय सम्मेलन उप समिति और मैसूर विश्वविद्यालय के डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसंधान और विस्तार केंद्र द्वारा आयोजित एक वार्ता में संविधान और संघीय प्रणाली की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए कुमार ने कहा कि देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो चुने जाते हैं, लेकिन एक सत्ता केंद्र ऐसा है जो निर्वाचित निकाय नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि वह सत्ता केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति है। केंद्र में वरिष्ठ मंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त कर उन्हें राज्यपाल का पद दिया जाता है और उन्हें राज्यों में भेजा जाता है, जिसे पुनर्वास केंद्र माना जाता है। लोकतंत्र के लिए खतरा यह है कि राज्यपालों को उन राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में नियुक्त किया जाता है जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, और राज्यपाल राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, जो लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरा है।
ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों पर हमला करना, सवारी रद्द करने पर झगड़ा करना, गाली गलौज करना बेंगलुरु में आम बात हो गई है। ऑटो चालकों और यूनियनों का कहना है कि अगर हर साल ऑटो किराए में संशोधन किया जाए और नए किराए का ऑटो चालकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए तो इस समस्या को खुद कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ऑटो रिक्शा चालक संघ ARDU के महासचिव रुद्रमूर्ति ने तर्क दिया कि ऑटो की परिचालन लागत आसमान छू रही है, क्योंकि ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि किराया पिछले 3 वर्षों से एक समान बना हुआ है। यह स्वीकार करते हुए कि कई ऑटो चालक अब मीटर का पालन नहीं करते हैं, मूर्ति ने कहा कि यदि किराए को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है, उन्हें थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है, तो लोग बिना राइड हेल्पिंग ऐप के तुरंत ऑटो प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप कुछ साल पहले ही शुरू किए गए थे और इससे पहले लोग ऑटो इसीलिए लेते थे क्योंकि अधिकांश लोग मीटर के हिसाब से किराया लेते थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जानकारी दे दे कि संजीव अरोड़ा पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद हैं। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के जालंधर में आप सांसद संजीव अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की और संजीव अरोड़ा का निजी कारोबार है, साथ ही ये पंजाब से राज्यसभा के सांसद भी हैं। आरोप है कि राजीव अरोड़ा ने धोखाधड़ी के जरिए जमीन अपनी कंपनी के नाम कर ली। ईडी की टीमें जालंधर में संजीव अरोड़ा के एक पते पर छापेमारी कर रही हैं। केरल में एक बार फिर से बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने केरल के 6 जिलों के लिए सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य भर में बारिश जारी है। मौसम विभाग की ओर से रविवार को जारी जिला वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए मौसम विभाग 4 रंगों का उपयोग करता है। ये रंग और उनके संदेश: ग्रीन किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं, येलो नजर रखें और निगरानी करते रहें, ऑरेंज तैयार रहें और रेड कार्रवाई सहायता की जरूरत है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलपुझा और कोट्टायम जिलों के कुछ हिस्सों में 5 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की हल्की से मध्यम वर्षा होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है और कहा है कि मेरे बेटे को निशाना न बनाएं। अगर मुकाबला करना है तो आइए मुझसे मुकाबला करें। शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे रविवार को ठाणे में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, के खिलाफ ठाकरे की कुछ टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। सीएम शिंदे ने कहा, किसी के बेटे की आलोचना क्यों कर रहे हैं? मुकाबला करना है तो आकर उसके पिता से मुकाबला करें। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने तंज कसा और कहा कि मेरे काम को मिली प्रतिक्रिया से वह उद्धव ठाकरे अंदर से टूट गए हैं और इसीलिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने खिलाफ आरोपों का जवाब अपने काम से देंगे। सीएम शिंदे ने पहले ही उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महाविकास अघाड़ी के 2.5 साल और हमारे 1.5 साल का हिसाब कर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब महायुति सरकार आई तब लोगों के हित का काम शुरू हुआ, इसलिए हमारी सरकार सबकी प्रिय सरकार बन गई। जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल्ला में
घर में घुसकर पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों ने एक परिवार के साथ और परिवार की महिला के साथ जमकर मारपीट की। वहीं परिवार के किसी सदस्य ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग वह परिवार की महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं मारपीट के बाद लहूलुहान हुई महिला थाने पहुंची और दबंगों के खिलाफ एक तहरीर में इरशाद, मुमताज, यूसुफ, जावेद, समी, बिक्की व महिला को नामजद किया गया है। वहीं घायल महिला को बिलारी के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच कार्यवाही शुरू कर दी है। आलम वारसी की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्पताल में भर्ती थे। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं के कारण शनिवार की रात को जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंपई सोरेन को फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। चंपई सोरेन के एक सहयोगी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने सुबह चंपई सोरेन को फोन किया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। चंपई सोरेन के बीते शनिवार को ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक चंपई ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा था कि वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अब चंपई ने जानकारी दी है कि ईश्वर तथा पुरखों की कृपा, डॉक्टरों के अथक प्रयास और आप सभी की प्रार्थना एवं आशीर्वाद से मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी बीच आज ही के दिन एक बार फिर बीच हमास की ओर से तेल अवीव और गाजा सीमा के पास रॉकेट दागे गए, जिसके कारण मध्य तेल अवीव में सायरन बज उठे। इजरायली सेना ने इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान की सूचना नहीं। हमास ने यह भी कहा है कि उसने गाजा के विभिन्न हिस्सों में इजरायली सेना पर हमला किया था। हमास की ओर से यह रॉकेट ऐसे समय में दागे गए हैं जब इजराइल के इतिहास में हुए सबसे घातक हमले के 1 साल पूरे होने पर सोमवार को देशवासियों ने रैली निकाली और शोक समारोह आयोजित किए। इस हमले ने गाजा में युद्ध को जन्म दिया और इजरायलियों को कभी न भूलने वाला घाव दे दिया। हमास ने सोमवार को फिर से रॉकेट दागकर यह दिखाया कि अब भी लड़ाई लड़ रहा है। उसने तेल अवीव और गाजा सीमा के पास रॉकेट दागे, जिससे हवाई हमले के सायरन बजने लगे। पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे के बाहर रविवार को हुए भीषण विस्फोट में चीन के 2 श्रमिकों की मौत हो गई है और कम से कम 17 अन्य लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ था। चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद चीनी दूतावास की ओर से बयान जारी किया गया। चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे काफिले पर देर रात करीब 11 बजे हमला हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल हुआ। धमाके के बाद पाकिस्तान में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास ने इमरजेंसी प्लान पर काम शुरू कर दिया। चीन के बयान में विस्फोटक और आतंकवादी हमला बताया गया और कहा गया कि चीन इसके बाद के हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। चीन ने हमले की जांच किए जाने की मांग की है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने को कहा गया है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसु कल्याण के उजलम ग्राम में गांजे के लगभग 800 पौधों को पुलिस ने किया जब्त। हुमनाबाद नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने किया। कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में बारिश से 3 लोगों की मौत, 150 घर क्षतिग्रस्त। लोकतंत्र बचाने के लिए राज्यपाल का पद समाप्त करे रवि वर्मा, कुमार ने कहा।
आज फिर अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया, आखिर किसे मनीष सिसोदिया ने कहिएगा। केरल के 6 जिले हो जाए सतर्क, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।